Namaste. Welcome, friends. Let's begin Saas Samiksha because the session will begin in a few minutes from now. Till then, we can begin observing our breath. You have taken out time, joined early. Use it to internalize. Sit with a straight spine and neck. Close your eyes gently and begin observing your breath. Breathe in and breathe out with awareness. Breathe in and breathe out. ये जो शुरुआत में हम थोड़ी देर के लिए सांस समीक्षा करते हैं, ये अपने आप में बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। भले ही सेशन शुरू होने में समय है, पर आप यहाँ आ गए हो, जुड़ गए हो, तो अपने आप से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दें। आंखें बंद हैं, आप भीतर उतर रहे हैं। You are ready to connect yourself with your own deeper zones. Choiceless, effortless awareness of breathing. सारा ध्यान सांसों पर। हर सांस के साथ अपने आप को भीतर जाता हुआ पाएं। हर बार जब सांसें छोड़ते हैं, मन को शांत होता हुआ पाएं। As you breathe in, feel yourself internalizing. As you breathe out, you are relaxing. Silence, silence, deep silence. Experience the silence within. भीतर की गहराइयों तक शांति का अनुभव करें। हम हमेशा वक्त पर सेशन शुरू कर रहे हैं। जो अभी चल रहे हैं वो जाने कि कुछ मिनटों का समय बाकी होता है सेशन शुरू करने में, तो हम सांस समीक्षा करने लगते हैं। क्या है सांस समीक्षा? कुछ नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, इतना सा ही करना है और कुछ नहीं। सांस देखें, आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है। आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान लेकर शांत मन से उसे देखते रहना, इसे सांस समीक्षा कहते हैं, ब्रेथ अवेयरनेस। अब एक प्रेयर से आज का सेशन शुरू करते हैं। दोनों हथेली को नमस्कार महामुद्रा में ले ले। नमस्कार महामुद्रा में जरूरी है कि आपकी हथेलियां इस तरह से जुड़ी रहें।
उसे अपने हृदय के लेवल पर ले आएं और अपने अंगूठे से या अपने नकल से हृदय से जुड़ जाएं। शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, दोनों आर्मपिट्स को खुला रखें। लंबी गहरी सांस भरे, अपने आप से जुड़े। With a long deep breath, connect to yourself and then connect to the divine. Chant a prayer in your mind, any prayer that connects you to the divine. जो प्रार्थना आपको लगता है कि वो प्रार्थना करने से आप अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं, बस वही प्रार्थना करें। आपने जो भीतर प्रेयर चैंट की है, उसके अर्थ और उसके भावार्थ से जुड़े, उनकी ऊर्जाओं से जुड़े। Connect to the vibration frequency of the prayer. Feel His presence right here, right now. परमात्मा की मौजूदगी को महसूस करते हुए संकल्प करें, शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। I am doing this session for my holistic healing, for absolute wellness in my body, peace in my mind, and ascension of my soul. इस संकल्प के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले और धीरे धीरे आंखें खोले। I, Manisha Shah, welcome each one of you again to this beautiful zone of Mirage to Oasis. Immensely grateful for your presence day after day. Day after day you're joining and doing this session with me. Thank you so much. So आज के सेशन में हम बॉडी हीलिंग के बारे में बात करेंगे। सो बॉडी हीलिंग या अपनी हेल्थ रिवाइवल या हेल्थ मेंटेनेंस, इट्स अ ह्यूज subject by itself. So probably for 2-3 days we will be doing different meditations on how to connect to your body, heal your body or maintain your health, bring yourself to the optimal health level. Okay, so जब हम हेल्थ की बात करते हैं, एंशियंट इंडियन विजडम कहता है कि हमारे हर एक रोग मनोकायिक है, मीनिंग every disease that we experience in our body is psychosomatic in nature. Psychosomatic, psycho मन, somatic शरीर। हर बीमारी मन से शुरू होती है और शरीर पर उतरती है। The beginning of diseases lies in our mind. It is stemming out of our mind. It is cooked in our mind. It is initiated in our mind and then it is manifested on our body. So शरीर में कोई भी रोग सीधा नहीं आ सकता। ये साइंटिफिकली आज प्रूव हो रहा है कि हाँ, diseases are psychosomatic. So as I said, ancient Indian wisdom spoke about this and they said 100% diseases are psychosomatic in nature. Science was ridiculing this fact just 50 years back, but today the studies are showing and the scientific proofs are showing that yes, 80% of our diseases are psychosomatic in nature.
बाकी का 20% भी हाँ वो बोलेंगे ही, आज नहीं कल, वो अभी तक पता करना बाकी है बस। तो आपको जो छोटी बड़ी बीमारियां हैं वो शुरू मन में हो रही हैं। अब मन में मतलब कहाँ, मन कहाँ है, मन क्या है, ये हम जानते हैं? ये जो इतना एजुकेशन सिस्टम है, सालों साल हम पढ़ाइयाँ करते हैं, मैं ये 15-16 सालों से ये वर्कशॉप करा रही हूँ। आई हैव मेट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लिटरली फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आप मॉन्क्स से लेकर साइंटिस्ट तक सभी ने ये वर्कशॉप्स मेरे पास किए हैं। स्टूडेंट्स से लेकर एक बुजुर्ग 80 साल के, उन्होंने भी ये वर्कशॉप किए हैं। 8 साल के बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों ने ये वर्कशॉप्स किए हुए हैं। आप जो चाहे डिग्रीज का नाम ले ले, शायद M2O के स्टूडेंट डेटा में आपको मिल जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि हर एक वॉक से इंसान आता है, एक सवाल पूछती हूँ मैं, आपका मन कहाँ है? देखिए, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, पूछने पर हम बताते हैं, राइट? Where is your mind? Where is your brain? Where is your heart? अगर कभी ECG नहीं किया फिर भी बता सकते हैं यहाँ हार्ट है, यहाँ ब्रेन है। लेकिन जब मैं मन पूछती हूँ ना, तो लोग लॉस्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ बताते हैं, यहाँ बताते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। क्या मतलब है इन बातों का? देखिए, अभी तक हमको ये जब पता नहीं कि हमारा मन कहाँ है और हमारी सारी बीमारियों का जड़ वहाँ है, मन से शुरू होता है, तो हम कैसे पहुँचेंगे? तो मिराज टूएसिस अपने वर्कशॉप्स में यही एजुकेशन दे रहा है लोगों को कि मन क्या है, कहाँ है, कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, आप उन शक्तियों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सालों से ये काम जब मैं करते आ रही हूँ, तो ये एक बात पता चली है कि जब हमें बेसिक पता नहीं है तो हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं और बीमारियों का इलाज बाहर बाहर चल रहा है। वी आर ट्रीटिंग अवर डिसीजेस from the outer sources, like, yeah, and there is nothing wrong. Of course we take medication, of course we go to doctors, thanks to doctors and medical science कि हम अपनी इतनी बीमारियों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट बीमारियां जहां उत्पन्न हो रही हैं वहां अगर हमने ट्रीट नहीं किया, इफ वी आर नॉट ट्रीटिंग एट द रूट कॉज from where it is stemming, then what happens is when we fall sick, we are fine by our treatments and medications, but that infection is there inside and it stems out in some other way. It stems out in some other way. So it keeps repeating in our body. It keeps coming back in form of the same disease, in the form of recurrence of the same disease, or it comes in form of some other disease. So yes, medication is very important, but meditation is equally important, is my point. आगे कल और बातें करेंगे हम मन के बारे में और समझेंगे. We'll speak more about our mind and mind powers, but today it's time for us to take our journey towards our meditation. So Hasta Pancha Narva Shuddhi you've been doing day after day, so you know it very well. तो जो जानते हैं वो अपने हिसाब से 7 राउंड्स करना शुरू कर दे. जो नहीं जानते हैं, जो नए नए जुड़े हैं, people who have just joined maybe yesterday or today. So if you are not very sure about what is Hasta Panja Narva Shuddhi, the word is Hasta. Hasta is हाथ, Panja is your palm, Narva Shuddhi is the name for Kapalbhati, another name for Kapalbhati, Narva Shuddhi. So Hasta Panja Narva Shuddhi we do in different asanas. You may choose your asana, any asana that you are comfortable with, or you may just sit and do it. Yeah, we receive questions like, can we do immediately after dinner? Because this meditation session is happening at different time zones. People are joining at different time zones. Of course, immediately after eating, you cannot do Hasta Panja Narva Shuddhi. So what will you do? Simply sit and observe your breath.
Breathe in and breathe out with awareness. Breathe in and breathe out with awareness. It is equally important. बट हस्तपंजा नर्वस को देखें ठीक से ताकि आप सीख जाएं. ये बहुत पावरफुल है. When we do हस्तपंजा नर्वस शुद्धि, we are releasing most powerful 4 hormones from our brain, from our pituitary and pineal gland. That is dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin. Our daily dose, DOSE. Dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin, and that is why हस्तपंजा नर्वस शुद्धि is very very beneficial. So learn it. Okay, आप ऐसे बैठ कर भी कर सकते हैं, right? So I am suppose that people must have started doing. People who have been doing from past few days with me, you've already started doing. So we are going to do 3 rounds now of hastapanja narva shuddhi for the beginners and the learners. Breathe in, and as you breathe out, do rapid exhalation with fist movement. Relax. When you relax, keep your palms down and observe. Observe the energy circulation around your head area, around your eyes and head area. आपका सारा ध्यान सिर की ओर रहे. वहां होते हुए वाइब्रेशंस फील करें. Ready for the second round? जब आप फिस्ट ओपन क्लोज कर रहे हैं, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंदर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, इस तरह से करें. कीप पुशिंग योर थंब वंस इनसाइड योर फिस्ट, आउटसाइड योर फिस्ट, इनसाइड योर फिस्ट, outside your fist, and relax. Keep your palms down and observe your neck, shoulders, hands. Feel the energy circulation. Feel the stimulation in your pituitary pineal glands. For one more round, raise your hands, breathe in and begin. ये स्ट्रोक्स आप धीरे धीरे भी दे सकते हैं. मेडिकल कंडीशन है तो धीरे धीरे करें. अगर बीपी हाई है तो धीरे धीरे करें. Continue doing as many strokes as you can. When you feel that enough I can't do 2 more and relax. That's how you will push your limits. And relax and observe whole spine. Take your awareness from your neck to the spine and the base tip of your spine. सारे मेरुदंड से अपना ध्यान गुजारे. इन वाइब्रेशंस को फील करें. स्पंदनों को महसूस करें सिर से होते हुए मेरुदंड के निचले हिस्से तक. और अब ध्यान प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं. ध्यान प्रयोग के लिए आपको स्पेशली कोई तैयारी करनी है, ये सवाल आता है. बस आप शांति से अकेले थोड़ी देर के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं. अपने मेरुदंड को सीधा रखें, गर्दन को सीधी रखें. आंखों को कोमलता से बंद करें. और
हथेलियों को आकाश की तरफ अपनी जांघों पर छोड़ दे और अपनी सांसों से जुड़ जाएं। The easiest way to enter a meditative state of mind is to observe the inflow and outflow of your breath. Ready to internalize शांत होकर भीतर जाने के लिए तैयार हो जाएं। अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लें। शांत शांत शांत। अपने मन को शांत होता हुआ देखें। शांत मन से अपने अंग प्रत्यंग को अब हमें रिलैक्स करना है। आंखें बिल्कुल ना खोले। आंखें बंद रखने से ही आपको आंतरिक अनुभव आ सकते हैं। अंतर्मुख होना है आपको, भीतर उतरना है। बहुत जी लिया बहिर्मुख होकर, बाहर 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 ही हमारी नजर रही, हमारा ध्यान रहा। आज हमने समय निकाला है भीतर जाने का, अंतर्मुख होने के लिए। तो पूरी ईमानदारी के साथ करें। Keep your eyes closed for most immersive experience. Take your awareness to your body. जब हम योगा वगैरह करते हैं तो शवासन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, तो हम अपने शरीर को रिलैक्स होने का संदेशा देते हैं। आज हमें हमारी बॉडी से बात करनी है, शरीर से बात करनी है। टुडे we are now going to converse with our body, our absolute awareness at our body. When we want to work towards body healing, it is important to connect with our body it is important to converse with our body. Take your awareness at your feet. And observe your feet minutely with your inner eye. Take your awareness to your feet and observe. अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के पंजों की ओर ले जाएं और मन की आंखों से अपने पंजों को देखें। ये इतना छोटा सा एक ऑर्गन, एक पंजा हमारे पूरे शरीर का भार उठाता है।
This little feet is carrying the weight of our whole body. Have you ever thanked this part? Have you ever taken your awareness to all your nails, all your toes? Have you ever taken your awareness and observed your feet properly? Do it now. See it in your mind's eye and express your gratitude. In fact, first seek forgiveness for ignoring, for never recognizing its job, its invaluable service. छोटे छोटे पैरों पे चलना शुरू किया था, तब से ये पैर, ये जो पंजे हैं, वो आपका भार उठाते ही जा रहे हैं, लेकिन कभी इनको हमने थैंक यू नहीं बोला। आज उनसे कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, I love you and I thank you for all your services. थोड़ा ध्यान पैरों के पंजों से ऊपर लाएं, पिंडलियों को देखें, घुटनों को देखें, जांघों को देखें, कमर के जॉइंट तक। दोनों पैर किस तरह से आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर ये ना चले तो क्या होगा, सोचे। अगर ओवरवर्क करने से कभी थोड़े दुख जाते हैं तो हम उनको उनकी तरफ दुर्भावना से देखते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन जो ये हमेशा लगातार आपका काम करते रहते हैं, कभी थैंक यू बोला है? Both our feet, they are carrying us all the time from one place to another, helping our movement. We abuse when it pains, but we never appreciate for the relentless work it does. Thank both your legs. Say, I am sorry, please forgive me. I love you and I thank you. You've helped me walk, jump, run, dance, and whatnot. You are awesome. I love you. I thank you. Take your awareness to your private organs. Thank them for a thankless job that they keep doing. अपने गुप्त अंगों की ओर ध्यान ले जाएं और इन्हें थैंक यू कहें। सारा वेस्ट निकालने में ये आपकी मदद करते हैं। शरीर में जो कचरा इकट्ठा करते हैं उनको बाहर फेंकने में ये मदद करते हैं। जीवन को, जेनरेशन को आगे बढ़ाने में ये मदद करते हैं। इन्हें थैंक यू कहिए। थैंक for helping you eliminate all the waste from your body, for helping you in reproduction and bringing lives on planet Earth.
Take your awareness now to your stomach. So many vital organs are there inside the stomach area that we talk about. Multiple vital organs like kidneys, urine bag, uterus, ovaries, testes, small intestine, large intestine, pancreas, if you come a little up, liver, spleen, all our digestive organs. We abuse them by eating what we should not be. But we never thank them for helping us digest everything that we put inside. Thank them today. शुक्राना करें इतने सारे ऑर्गन्स को भीतर इतनी अच्छी तरह से चलाने के लिए। शुक्राना करें जो अनाप शनाप हम खाते रहते हैं उसको पचा देता है वो। ध्यान ले जाएं छाती की ओर। टेक योर अवेयरनेस टू योर चेस्ट, योर रिब केज, योर लंग्स, योर हार्ट, डायफ्राम, आपकी पसलियां, हृदय, फेफड़े, इन सारे ऑर्गन्स को थैंक यू कहे। लगातार 24 घंटे काम करते हैं ये, तब जाके आप जिंदा हो। अगर लंग्स या एयर प्योरिफिकेशन बंद कर दे तो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा आपके पूरे शरीर में और सफोकेट होके मर जाओगे आप। अगर हृदय ब्लड प्योरीफाई नहीं करेगा तो सारा का सारा बॉडी का ब्लड टॉक्सिक हो जाएगा। ये सारे ऑर्गन्स कोई आप एफर्ट नहीं लेते हैं, वो अपने आप काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इन्हें थैंक यू कहे, इनका आभार व्यक्त करें। शरीर में जब कोई बीमारी होती है या शरीर थोड़ा सा वीक होता है तो हम उसको अब्यूज़ ज़रूर करते हैं, उसके बारे में कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं। कितनी शिकायत करते हैं, 1000 लोगों को फ़ोन लगा देंगे और शिकायत करेंगे, लेकिन कभी उस तरफ ध्यान देकर उसने जो इतने सर्विसेज हमको दिए हैं उसका शुक्राना कभी नहीं करते। आज करें। रिकॉग्निशन दे अपने शरीर को एक वंडर मशीन की तरह। ध्यान ले जाएं अपने कमर के निचले हिस्से पर, वहां से ऊपर आते हुए सारे स्पाइन से ऊपर धीरे धीरे आते हुए हर एक वर्टिब्रा को, मनके को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहे। दोनों शोल्डर्स, दोनों हाथ, हथेलियां, अंगुलियां,
हर एक ऑर्गन अपना काम पूरी ईमानदारी से बखूबी निभा रहा है, तब जाके हमारा शरीर इस तरह से चलता है। थैंक यू कहिए, माफी मांगे एब्यूज करने के लिए, एक्सरसाइज ना करने के लिए, आलस में पड़े रहने के लिए माफी मांगे। और थैंक यू कहे उसकी सर्विसेज के लिए। सिर का पूरा हिस्सा, आपका पिछला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, टेक योर अवेयरनेस टू योर हेड नाउ, योर ब्रेन, hold your face, all your sensory organs, your eyes, nose, ears, mouth, tongue, teeth, lips, chin, cheeks, in your neck, your voice box, your food pipe, windpipe. How many organs are working in synchronicity? A beautiful, synchronized, graceful dance that your body does so that you can lead your life peacefully, beautifully. कितने सारे अवयव एकजुट होकर एक रिदम में काम करते हैं, तब जाके आपका जीवन इस तरह से चल रहा है। अंग प्रत्यंग को थैंक यू कहिए। हाँ, मैं जानती हूँ ये शरीर अनित्य है। हाँ, मैं जानती हूँ कि देह का मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन देह को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये देह है तो जीवन है। ये देह हमारा देवालय है, जहाँ हमारा आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप आत्मा रहती है। हमारी आत्मा का वास स्थान है, ये निवास स्थान है ये। तो इसे रिस्पेक्ट से देखें, शुक्राने से देखें, प्यार से देखें। इस ब्यूटीफुल लव एंड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन के साथ आज का ध्यान प्रयोग कंक्लूड करेंगे। बॉडी हीलिंग के लिए और आगे के सीक्वल्स में हम डीपर हीलिंग मेथोडोलॉजी से करेंगे। आज के लिए शरीर के शुक्राने के साथ, शरीर को प्यार की एनर्जी देने के साथ, अब अपने पूरे शरीर को महसूस करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, रिगरसली रगड़े, आंखों पर रखे, आंखें खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले बंद करे। आंखें बंद ही रखे, दोनों हथेली को ब्लेसिंग मुद्रा में ले। मन ही मन सारे जगत के जीव प्राणियों को मैत्री भाव दे। Bless all the living beings in this cosmos, in this universe. May every soul find the true path of Dhamma, walk the path, and realize themselves. Rub your palms again, take the energy on your neck, shoulders and hands, and the third time let it flow throughout your body and open your eyes with immense gratitude and joy. Thank you, thank you, thank you. Today I have crossed the time limit, but the subject is such that you need to really go deep within. We will be continuing body healing further, because today we have just connected
our mind and body. We have realized the connection of mind and body. Tomorrow we will use this connection and help our body to heal faster. Thank you so much. God bless each one of you. Keep coming. Consistency is the key. Thank you. जिनको समय है वो 2 मिनट के लिए थोड़ा साइलेंस में बैठेंगे, क्योंकि ऐसा कोई मेडिटेशन करने के बाद इमीडिएटली नहीं उठ जाना चाहिए। थोड़ी देर एकदम शांति से अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए अभी जो हमने किया उस पर ध्यान लें। सेशन वैसे कंक्लूड हो चुका है, तो जिनको जल्दी है, मैं समझ सकती हूँ, कोई काम है तो आराम से उठ जाएं और अपनी रूटीन में लग जाएं। बट समय है तो 2 मिनट के लिए बैठें।